یہ واقعہ ہے گجرانوالہ کے گاؤں کا۔ یہ ڈنڈا سوٹوں کے ساتھ ساڑھ پہ مارنا شروع کیا سانس نے اور سوکن نے۔ اس کے ہسبینڈ نے پیٹرول چھڑکا اور اس کی ساس نے آگ لگا دی۔ اس کی ساس، اس کی سوتن، اس کے شوہر اور دیور نے مل کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ کس نے جلایا تھا آپ کو؟ ساس نے، سوتن نے، میاں نے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود جان دینے والا ہوں، جان لینے والا ہوں۔ یہ خود کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں دیں گے انصاف تو میں خود لوں گا۔ جو دل ہے نا پکڑا گیا۔ بھائی کیا کیا تھا؟ کیا کہوں گا میں اس سے کہ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ یہ حکومت نہیں کرے گی، میں خود کروں گا۔ پھر حکومت مجھ سے پوچھے گی اب تم نے کیوں کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈی کرائم رپورٹر۔ ناظرین، جب بچیوں کی ایک دفعہ شادی ناکام ہوتی ہے تو والدین اس امید سے، اس آس سے بچیوں کا دوبارہ گھر بناتے ہیں کہ شاید اب ہماری بچی خوش رہ سکے، سکون میں رہ سکے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس قدر ظالم اور جلاد بن چکے ہیں کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اس کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے، اس کو رشتے نظر نہیں آ رہے۔ آج جو خوفناک اور دل دہلا دینے والی داستان میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، یہ واقعہ ہے گجرانوالہ کے گاؤں کا، جہاں پر شمائلہ نامی عورت کو اس کی ساس، اس کی سوتن، اس کے شوہر اور دیور نے مل کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ پہلے 2 دن کے لیے شمائلہ کو کمرے میں بند رکھا، اسے کھانا پینا نہیں دیا۔ جب شمائلہ کی بھوک سے حالت خراب ہونے لگی، اس نے شور مچایا کہ خدارا مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، جس کے بعد غصے میں آ کے شمائلہ کے شوہر نے اور اس کے سسرالیوں نے اس پر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ ناظرین، یہ خوفناک داستان کس طرح سے پیش آئی، چلیے شمائلہ سے اور اس کے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کب سے اس نے آپ کے ساتھ مار پیٹ اور ظلم شروع کیا ہوا تھا؟ 4 والی کس بات پہ لڑتے تھے آپ سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی عورتوں کس نے جلایا تھا آپ کو؟ ساس نے، سوتن نے، میاں نے۔ اس وقت میں شمائلہ بی بی کی بہن اور بھائی کے ساتھ موجود ہوں، وہ شمائلہ جس کو بے دردی سے اس کے سسرال والوں نے جلا دیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے دل سے افسوس ہوا ہے جو سانیہ، جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کب ہوئی تھی شمائلہ کی شادی، اور کیا پہلی شادی تھی یا پھر دوسری شادی تھی؟ اس کی میم دوسری شادی تھی، لو میرج شادی تھی، اور یہ جو اب یہ وقوع ہوا ہے یہ سیکنڈ ڈے والے دن ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت بہت بے دردی کے ساتھ پیٹرول چھڑک کے اس کے ہسبینڈ نے، اس کی سوکن نے، اس کی سانس نے، اور جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کے 2 دوست ہیں، وہ میں نے ابھی تک تو دیکھے نہیں ہیں۔ سسٹر میری کا بیان یہ ہے کہ وہ ان کو میں نے 1 مرتبہ دیکھا ہے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے پیٹرول چھڑک کے مجھے آگ لگائی گئی، اور 2 دن سے مجھے کمرے میں بند کیا گیا، اور کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، اس لیے میں نے شور مچانا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا، پہلے یہ ڈنڈا سوٹوں کے ساتھ ساڑھ پہ مارنا شروع کیا سانس نے اور سوکن نے۔ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے پیٹرول چھڑکا اور اس کی ساس نے آگ لگا دی۔ اس کو بچانے کے لیے اگر کوئی آیا تو وہ کون آیا؟ جو نہ اس کے ہسبینڈ کی بہن کی بیٹی ہیں، مطلب کہ نند کی بیٹیاں، وہ بچانے کے لیے آئیں، اور ان کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ بھی تشدد کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے ان کے اوپر پانی پھینکا، اور ان کی آواز یہ آ رہی ہے کہ مت اس کی آگ بجھائے، اس کو ایسے ہی جل کے مرنا چاہیے، اور وہ بھی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ اس کے پروف، اور ہم الحمدللہ سب سے یہی دعائی کہ یہ دعا کرے ابھی تک کہ ہماری سسٹر کو تندرستی ملے، اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں انصاف ملے۔ یہ بتائیں کہ شادی کتنے عرصے پہلے تھی، کوئی بچے تھے؟ نہیں، بچے نہیں تھے، اور شادی کو 8-9 ماہ ہوئے ہیں۔ لڑائی کس بات پہ ہوتی تھی کہ اتنی یہاں تک بات آ پہنچی کہ جلانے پہ آ گئے؟ ابھی تک ہمیں اس چیز کا نہیں، بس یہی پتہ چلا ہے، سسٹر نے یہی بتایا ہے کہ کیونکہ جب مجھے اس چیز کی ملی تھی کہ آپ کی سسٹر کو جلایا گیا، تب مجھے پولیس والوں نے کال کی تھی۔ پہلے مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا شاید مزاح ہوگا، جب مجھے پولیس والوں کو کال آئی، پھر میں ہاسپٹل گئی، ڈرما سینٹر حفصہ آباد ضلع ہاسپٹل میں، ادھر جا کے انہوں نے بولا کہ اس کو نہ لاہور لے جائیں۔ ابھی ہم اس وقت لاہور ہیں، اور ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 82% جل چکی ہے اور 18% چانس ہے۔ یہ بتائیں شمائلہ کی پسند کی شادی تھی یا پھر آپ لوگوں نے کی تھی؟ اس کی پسند کی شادی تھی۔
पसंद की शादी में नॉर्मली होता है कि ससुराल वाले लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन शौहर तो अच्छा होता है, क्या वजह बनी, क्यों उतनी नफरत करते थे उससे कि उसे मारने तक पे उतर आए थे? पहले उनका घरेलू झगड़ा था, वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। उसके अलावा ये अचानक ही ये हमें इस चीज़ का प्रूफ मिला है कि उनके साथ ऐसा हो रहा था, ऐसे हो रहा था, क्योंकि हमारी सिस्टर को कोई उसके पास मोबाइल नहीं था कि जो हमें बता सके या घर से भाग सके। ये हमें तभी पता चला है कि जब उसके साथ इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बहन को हॉस्पिटल आपकी उनकी नन की बेटियां लेकर गई थी, आप लोगों को पैगाम पुलिस ने दिया? जी, मुझे पुलिस ने पैगाम दिया और हॉस्पिटल इसका हस्बैंड भी साथ ही था। वैसे जब उसको लेके ना गाड़ी में लेके तो जा रहे थे, तो जब याना भाई और पुलिस वाले आए, उन्होंने उनसे मेरी सिस्टर से बयान लिया ना, तो उसने बोला, मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड ने चला दिया, और फौरी तौर पुलिस वालों ने मेरी सिस्टर को अपनी स्टडी में ले लिया और उसके हस्बैंड को अपनी स्टडी में ले लिया। और हस्बैंड के जो दोस्त और भाई थे वो साथ नहीं थे? नहीं, वो इस वक्त नामालूम है। इसकी नंद उसकी सोकन नामालूम है, उसकी सास नामालूम है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बस अगर स्टडी में पुलिस की स्टडी में है तो उसका हस्बैंड है। शुमाइला की पहली शादी क्यों ख़त्म हुई थी और उसमें से कितने बच्चे थे? उसकी पहली शादी इसलिए ख़त्म हुई थी कि क्योंकि उसके पास सिर्फ बेटियाँ थी, उसकी 5 बेटियाँ हैं, और इसलिए उसकी शादी पहले ख़त्म हुई थी। उस बेटियों से इसने एक बेटी ली हुई है, बड़ी से छोटी रबिया, ठीक है। उसके 4 बेटियाँ उसके पहले हस्बैंड के पास ही हैं। रबिया उस वक्त कहाँ थी? रबिया वो माशाल्लाह हिफ़्ज़ कर रही है। वो उसको अभी तक भी नहीं पता कि मेरी मामा के साथ क्या हुआ है, तो फिल वक्त हम जल्दी से जल्दी उसको भी बुला लेंगे। उसको कुछ पता नहीं है कि मेरी मामा के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो हिफ़्ज़ कर रही है, हॉस्टल में है। तो वैसे वो रहती सिसुतेले बाप के साथ थी? नहीं, वो उधर हॉस्टल में रहती थी या मेरे पास रहती थी। जब छुट्टी आती थी तो आपके पास आती थी? जी, जब छुट्टी आती थी वो मेरे पास आती थी, तो कभी कभार मामा को मिलने के लिए जाती थी। क्योंकि जब शादी हुई थी तब उसके हस्बैंड ने यही कहा था कि ठीक है तुम बेटी ले लो, बेटी हमारे यहाँ रहेगी। जब शादी होगी उसके बाद उसने बोला कि बेटी इधर नहीं रहेगी, अगर आएगी तो तुम्हें मिल के फ़ौरन चली जाएगी। आला हुकाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आला हम का सबको, वज़ीर आलम को, सबको यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी सिस्टर को बहुत बहुत बेहरामी के साथ पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई है, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए है, और मेरी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलवाएंगे और हमारी पंजाब पुलिस, हमारी अदालतें भी आपको इंसाफ दिलवाएंगी। नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ जो विक्टिम है शुमाइला, उनकी बहन मौजूद थी। मेरे साथ अब उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत दुआएं और बहुत अफसोस आपके लिए, आपकी बहन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये बताएं, बहनें तो भाइयों से हर बात शेयर करती हैं, कभी बहन ने बताया था कि भाई मुझे इस तरह मार रहे हैं, मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था? ये अचानक ही हमें इतला आई है इसके साथ हादसा हुआ है। आप ही ने बताया, मुझे फ़ोन किया, मैं काम पे हूँ अपने, फ़ोन किया तो मैंने कहा नहीं ये मजाक कर रही है। वैसे काफ़ी दिन हो गए घर नहीं गया, तो इसलिए कह रही होगी आ जाएगा भागा भागा। मैंने फिर इसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद इसने मुझे फिर फ़ोन किया, उसने कहा कि उसके साथ वाकई में ये हादसा हो गया। हाफसाबाद से उन्होंने कहा अगर लाहौर ले जाओ, उधर जाके इसका इलाज करवाओ, इधर से इलाज नहीं हो सकता। आना जाना था बहन के घर? जी, आना जाना था, सब कुछ था। खुश रहती थी? खुश तो बस ऐसे ही है, हमें यही कहती थी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। पूछते थे उससे कोई तकलीफ़, कोई आवाज़ आ रही, कोई परेशानी है तो बता, किसी किस्म की भी आवाज़ आ रही है तो बता, भाइयाँ तेरे सर पे हाथ रखा है, इसलिए रखा है कि तुम्हें अपने पास, इसलिए तकलीफ़ ना हो तुम्हें। और ये अचानक इन्होंने ऐसा किया, मैं खुद परेशान हूँ कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। अगर उन्होंने इसे नहीं रखना था, अगर इसके साथ नहीं इन लोगों ने आगे, वो हमें कहते कि आपकी बेटी है ले जाओ, हम खुद जाके उसे ले आते, चाहे हम अपने घर में लाके बांध देते उसे, वो उसके पास रह रही थी, जैसे भी रह रही थी, हम उसे अपने पास ले आते। हमारे पता तो होता हमें कि ये हमारे पास है। 2 दिन उसको कैद रखे भूखा प्यासा, और तीसरे दिन जला दिए। ये वो ही बता रही है, हमें तो कुछ इल्म नहीं था। हमें तो ये पुलिस वालों की कॉल आई है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी सिस्टर है, आग लग गई है, हम उसे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। ये इसको होश में आने के बाद इसने कहा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, बांध के भी रखा है और डंडों से भी मारा है।
बहनोई का आना जाना था घर पे? नहीं, हमारी तरफ नहीं आता था वो, बिल्कुल भी नहीं आता था। बिल्कुल नहीं। हम अपनी बहन की तरफ जाते थे बहन आती थी? और कभी कभार वो जैसे तकलीफ़ उसे होती थी, बीमार हो गई, कुछ भी हो गया, उसने हमें फ़ोन कर दिया, हमें, हमारी बहन थी, हमने जाना था। नहीं, बहन आपकी तरफ आती थी? बहन आती थी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारी बहन थी, बहनों ने फ़ोन कर दिया इसे दवाई ला के दो। हम गए, हमने उधर से गए, उसे बहन को मोटरसाइकिल पे बिठाया, डॉक्टर के पास ले गए, दवाई ली, दवाई लेकर फिर वापस उधर छोड़ के अपने घर आए, सिर्फ इसलिए कि ये खुश रहे। पुलिस आपके साथ ताउन करी है? कौन कौन सा मुलजिम आपका गिरफ्तार हुआ है? तामन कर रही, बिल्कुल नहीं तामन कर रही। एक शख्स को पकड़ा हुआ उन्होंने, उसका हमने क्या करना है, वो तो खुद मुजलम है, जिन्होंने उनसे करवाया है सब कुछ, उसकी माँ है, उसकी पहली बीवी है, उसे पकड़ें, हमें पता चले कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, इन्होंने जुल्म क्यों इतना किया। बहन भी कह रही थी कि छोटे देवर ने भी जलाया, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा बताया। जी, वो भी बिल्कुल, वो भी साथ था और इसके 2 दोस्त भी साथ थे। आपके बहनोई ने कोई पैगाम दिया, कोई बात की है उसने? नहीं, अभी तो हमारी बात नहीं उससे हुई। पुलिस को कोई बयान दिए? नहीं, अच्छा, किस थाने में आपका केस चल रहा है? ये कोट लद्दा में। अच्छा, वहाँ की जो पुलिस है वो आपके साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही? नहीं, वो तावन किसी किस्म का नहीं आ रही। 2 दफ़ा आए हैं, इधर से ही लाहौर में ही बयान लेके गए हैं वो। नहीं, लाहौर आज आए हैं और उधर से लाहौर आज आए हैं, आज बयान वगैरह ले गए हैं। जो मौके पे मौजूद थे उस टाइम, क्योंकि मेरी सिस्टर की इतनी पोजीशन थी कि पता नहीं उसने क्या क्या लिखवाया है और क्या क्या नहीं। और आज जो है ना, आज कुछ वो मतलब कि पहचान रही है और इंटरव्यू अपना उसने ठीक दिया है और जो जो उसके साथ हुआ है वो उसने बता दिया है। आज पुलिस आई थी और आज इंटरव्यू ले गई है और वो कह रही है इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो हमें सिर्फ यही है कि वो जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी जितने मुस्लिम मतलब के जितने लोग थे उनको जल्दी से जल्दी अपनी हिरासत में लें। बहनोई क्या करता था? बेकरी थी उसकी, फूड की, किस नाम से? नाम का नहीं मालूम। तो पहली बीवी में से बच्चे थे? जी, 5 बेटियाँ। 5 बच्चे हैं उसके शायद उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटियाँ हैं या 2 बेटे हैं, मतलब कि उसके 5 बच्चे हैं पहली बीवी से। आप क्या पैगाम देंगे आला हुकाम को? हम यही कहना चाहते हैं, माड़े बंदे को क्या असरार अल्लाह का। ये मखलूक है अल्लाह की, मर मैंने भी जाना है, मर उसने भी जाना है जिसके साथ हादसा हुआ है, मर उसने भी जाना है जिसने ये किया है। कोई दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता, जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है, जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है। मैं सिर्फ ये उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ये कैसे कर दिया, कैसे उसने, जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं खुद जान देने वाला हूँ, जान लेने वाला हूँ, ये खुद कैसे ऐसे कर सकता है। आप पैगाम देना कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मुझे चाहिए, अगर ये नहीं देंगे इंसाफ तो मैं खुद लूँगा। मेरी बहन है, ये जो दिल है ना पकड़ा गया, कैसे इसे छुड़ाऊँ। आखिर आगे जाके वो मुझसे पूछेगी कि भाई क्या किया था, क्या कहूँगा मैं उससे कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं खुद करूँगा। फिर हुकूमत मुझसे पूछेगी अब तुमने क्यों किया, फिर मैं कहूँगा कि हाँ मैंने अपने हक़ पे किया, मुझे जहाँ मर्जी लिटा दो, मैं लेटने भी तैयार हूँ, कटने भी लिए तैयार हूँ, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अभी नहीं किया तो मैं कभी करूँगा। बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहत याब करे, आपके घर वालों को और आपको सब्र दें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ शुमाइला के भाई और बहन मौजूद थे। उनकी एक ही बात है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन के साथ जुल्म हुआ है। और शुमाइला के भाई का कहना है कि अगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं देगी तो मैं अपनी बहन का जो बदला है, जो इंसाफ है, वो मैं खुद लूँगा। नाज़रीन, आपने देखा एक बार फिर हमारी मुहाफ़िज़ पंजाब पुलिस ने कोई काम नहीं किया। घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं आईजी पंजाब साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये गरीब और मज़लूम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? अल्लाह के बाद इस ज़मीन पर सिर्फ आप ही लोगों का सहारा है। ये लोग दौड़े आते हैं आपके पास मदद लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, और आगे से पंजाब पुलिस ही इस तरह से ट्रीट करे तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? आपने देखा इंटरव्यू में कि शुमाइला का भाई इस वक्त इंतहाई जज्बात में है और वो कह रहा है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं भाई हूँ, मैं अपनी बहन का इंसाफ खुद लूँगा। अब देखा जाए ये इंसाफ लेंगे, फिर वो लोग इंसाफ लेंगे, बात किस कदर बढ़ती जाएगी।
میں آج ہی پنجاب صاحب سے یہی کہوں گی اور CCPO لاہور صاحب کو یہ ضرور کہوں گی کہ خدارہ ان غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کریں، ان کا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ پولیس اس کیس کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ مجھے وجیہہ عباس کو لیڈی کرائم رپورٹر کے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔